Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will talk about the properties of the rational numbers. So let's get start the topic. So property of rational number. So the property of rational number we will see for two operation. Okay, that means first of all we are talking properties of rational number here for addition. Okay, now we are talking about the property of rational number for addition के लिए जितना सारे प्रॉपर्टीज है सब जानेंगे. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए जानेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद डिवीजन, सबके लिए जानेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. आई थिंक this property already you have known in the chapter of integer. Okay, what is closure property? The form of the closure property is a plus b is equals to c. अब कुछ बोलेंगे सर ये तो डायरेक्ट कुछ लिख दिए, a plus b is equals to c कैसे क्या है, कुछ समझ में नहीं आया. देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल फॉर्म होता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल फॉर्म होता है वही है ये a plus b is equals to c. This is the actual form of the closure property. Now this a b you can think too many things. This a b c you can think too many things. A can be here rational number, a can be here integer, a can be here whole number also. Whenever we are talking about the rational numbers, then a we have to take as rational number, b we have to take as rational number, c we have to take as rational number. जब यहाँ पे रैशनल नंबर का बात चल रहा है तब ए बी सी तीनों रैशनल नंबर मानेंगे. जब ये ही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी जब इंटीजर के चैप्टर में पढ़ेंगे तब जानेंगे ए बी सी वहां पे तीनों ही इंटीजर होगा. यही प्रॉपर्टी जब होल नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे तब वहां पे क्या होगा, यही प्रॉपर्टी होगा, बस वो ए बी सी तीनों चीज क्या हो जाएगा, ए बी सी वहां पे तीनों चीज होल नंबर हो जाएगा. प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बस इसका टॉपिक वाइज इसका वेरिएशन चेंज होते जाएगा. मतलब वेरिएशन नहीं, नेम चेंज होते जाएगा, एबीसी का नेम चेंज होते जाएगा. यहाँ पे एबीसी रैशनल नंबर के बात चला तो एबीसी तीनों रैशनल नंबर है. तो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे देखो दो रैशनल नंबर, ए एक रैशनल नंबर, बी इज अनदर रैशनल नंबर, एंड व्हेनेवर वी आर एडिंग these two rational numbers then we are getting also a rational number. Here you can see a b c are rational number. Okay, a b c are rational numbers, तीनों ही रैशनल नंबर है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ वी आर एडिंग दैट मीन्स addition or sum of two rational number will also be a rational number. Sum of two rational number will also be a rational number. दो rational number का sum करेंगे, ऐड करेंगे तो मुझे और एक rational number मिलेगा. यही कौन प्रॉपर्टी कहता है, ये कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये है. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है कि दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रहा है. क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ once you can observe here that we are talking about the addition, properties for addition. एडिशन के लिए बस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, इसीलिए सारा यहाँ पे देखो एडिशन यूज, यहाँ पे ऐड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक? सो व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द स्टेटमेंट, एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, where a b c are rational numbers. A, B, C are three rational numbers, and if we will change the order
of the addition of three rational numbers, then we will get the same answer. In first case we are adding the last two rational number, then we are adding with the first one, and in the second case we are adding the first two rational numbers and then we are adding with the third one, and in the both case we will get the same answer. We will get the same answer, and this structure is the structure of associative property. This structure is the structure of the closure property. क्लियर? ये स्ट्रक्चर तुमको याद करना पड़ेगा, और यही स्ट्रक्चर हर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हर नंबर्स का प्रॉपर्टी के लिए यूज होगा. यही जहाँ पे यहाँ पे रैशनल नंबर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी सी तीनों रैशनल नंबर है. जहाँ पे इंटीजर का बात चलेगा वहाँ पे ए बी सी तीनों इंटीजर होगा. प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बस वहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा. वहाँ पे होगा प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन. वहाँ पे हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन. ये भी हो सकता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर फॉर एडिशन. प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बस होल नंबर के टाइम पे एबीसी होल नंबर हो जाएगा, इंटीजर के टाइम पे एबीसी इंटीजर हो जाएगा. प्रॉपर्टी सेम रहेगा. तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, अगर तीन रैशनल नंबर होगा तो उसमें से हम तीन रैशनल नंबर को दो तरीके से अगर ऐड करेंगे. पहला क्या है? पहला केस में क्या लिए हैं? लास्ट टू रैशनल नंबर को फर्स्ट में ऐड करेंगे, उसके बाद फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे. तो इस केस में जो आंसर आएगा. और दूसरा केस में क्या करेंगे? फर्स्ट दोनों को एक साथ करेंगे, ऐड करेंगे पहले, उसके बाद थर्ड के साथ ऐड करेंगे. तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. What is commutative property? A plus B is equals to B plus A, where A comma B are rational number. दो rational numbers हैं. There are two rational numbers, and if we will add this two rational number in the different order, then we will get the same answer. That means here we are doing A plus B. Suppose 1 plus 2. These are not rational number 1 and 2, but giving an example only. And 2 plus 1. We will get the same answer or not? Same answer. And same thing we have taken here whole number, and you have to take here rational number. Suppose 5 by 3 plus 7 by 3, and we are adding 7 by 3 and 5 by 3. Will we get the same answer or not? Clear? This is called the commutative property. Clear? And last property is what? Last property is inverse property. Inverse property. Okay, what is the inverse property? The inverse property is A plus minus A is equals to 0. This is the actual statement property. Here A is a rational number. A is a rational number. Okay, now this minus A is what? Minus A is the additive inverse of A. This A. Minus A is the additive inverse of this A. ये minus A का additive inverse है. Clear? So and A is what? A is a rational number. जहाँ पे रैशनल नंबर का बात चल रहा है तो वहाँ पे हम बोल दिए हैं ए बी सी जो भी रहेगा. जब रैशनल नंबर का बात चले तो ए बी सी रैशनल नंबर होगा. जब इंटीजर का बात चलेगा तो ए बी सी इंटीजर का बात इंटीजर होगा. क्लियर? सो इनवर्स प्रॉपर्टी देखो, इसमें समझने का कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है ये इनवर्स प्रॉपर्टी समझना. ठीक, सपोज 1/2 प्लस, तो 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसका इनवर्स रैशनल नंबर क्या होगा? जस्ट उसके सामने माइनस आ जाएगा तो -1/2.
अब बोल रहे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये इनवर्स प्रॉपर्टी कह रहा है। तो ऐड करके देखो, ये हाफ, नाउ प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू व्हाट? माइनस। सो हाफ माइनस हाफ, सेम नंबर माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। क्लियर? देन minus half is what? Minus half is the additive inverse of half. This minus half is the additive inverse of plus half. Clear? अगर मैं बोलूं -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तब हो जाएगा +2। -3 का एडिटिव इनवर्स +3। अगर मैं बोलूं +3 का एडिटिव इनवर्स -3। तो यहां पे चेंज क्या हो रहा है? बस पहला वाला नोटेशन, जो नंबर के सामने रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, उसके पहले जो साइन होगा बस वो चेंज हो जाएगा एडिटिव इनवर्स में। क्लियर? एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? जो पहला वाला साइन होगा बस वो ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। ये नहीं कि मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन होगा, ये नहीं। एडिटिव इनवर्स में बस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। मल्टीप्लाई या डिवीजन रहेगा तो उसका केस की नहीं, वो रहेगा ही नहीं। अगर किसी के दिमाग में आए सर आप बोले तो माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई रहे तो उसके सामने ऐसा कोई केस आएगा ही नहीं। या फिर उसके सामने डिवाइड है, ऐसा कोई केस आएगा ही नहीं। उसके सामने हमेशा या फिर प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। क्लियर? सो दीज आर द एडिटिव इनवर्स and here one important thing you should know, and zero, this zero is called what? I'm writing here, okay? This zero, it is called additive identity. The zero is called additive identity. This thing you may have short question, as a short question in your examination. Okay, what is additive identity? This is zero. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी को समझ में नहीं है। ये एक नेम है, जैसे मेरा नेम है दीपंकर, उसी तरह इस प्रॉपर्टी में जीरो का नेम है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, जीरो का नेम है एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह जिसी तरह मेरा नेम है दीपंकर भूमि, क्लियर? उसी तरह जीरो का नेम है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा प्रॉपर्टी में? इनवर्स प्रॉपर्टी में। और किसका इनवर्स? एडिशन का इनवर्स प्रॉपर्टी में, उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। और -a क्या है? -a है a का एडिटिव इनवर्स। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर फॉर एडिशन। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज फॉर multiplication. So first of all you will pause the video to note it down, then we will go forward. अब अच्छी तरह से सब नोट कर लिए हो, ठीक? अब देखो, अब क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर, यहाँ पे बस चेंज करेंगे, ठीक? रहेगा सेम टू सेम, सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो चेंज क्या क्या होगा। अब क्या बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, ठीक? चेंज कर दिया। अब प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, सारा प्रॉपर्टी सेम है सारा प्रॉपर्टीज। बस वहां पे एडिशन का बात चल रहा था तो एड प्लस साइन यूज करते थे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बात चल रहा है तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लाई साइन। सारा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, यहाँ पे जहां पे प्लस साइन है वहां पे चेंज होके मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा। प्रॉपर्टी सब कुछ सेम रहेगा, ये सब भी सेम रहेगा, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी बस चेंज होगा। यहाँ पे जो है इनवर्स प्रॉपर्टी, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी। ये दिखा रहे हैं, ठीक? घबराने का कोई बात नहीं है, दिखा रहे हैं, ठीक? तो पहले से देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि इफ we will multiply two rational numbers, then we will also get a rational number. When a b c rational number, no, that means अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर होगा। ओके, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट? इफ वी आर हैविंग थ्री rational numbers and we are multiplying three rational numbers by two orders. In first order we are multiplying last two rational numbers
and then we are multiplying with the first one, and in the second case we are multiplying the first two rational numbers, and then we are multiplying with the third one, and in the both case we will get the same answer. This is telling who associative property is telling this. Clear? Now commutative property is what? If we are having two rational numbers and we are multiplying these two rational numbers by different order. Here a into b, first a we are multiplying here a by b, and here we are multiplying b by a, and we will get the same answer in both cases. Clear? And what is inverse property? This will be changed. Inverse property, suppose there is a rational number a is a rational number, and we are talking about the multiplication, so we have to use the multiply sign. Clear? What was the inverse property for addition? Do you remember it? a plus minus a is equals to 0, यही था ना एडिशन के लिए इनवर्स प्रॉपर्टी, तो यही था. तो यहाँ पे कि एडिशन के लिए था इसीलिए प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो इसीलिए मल्टीप्लाई. तब यहाँ पे क्या था? माइनस ए, तो माइनस ए क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. माइनस ए क्या था? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. ए का क्या आएगा? ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये माइनस से क्या था? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जस्ट ए का रेसिप्रोकल. ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जस्ट ए का रेसिप्रोकल. तो ये क्या हो गया? ये माइनस ए हो गया. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. माइनस ए क्या है? माइनस ए है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. आई एम राइटिंग क्लियरली. ओके, 1 by a is the multiplicative inverse of a, and the inverse property is telling if we will multiply a rational number and its inverse, multiplicative inverse, then we will get 1. Is it true? Do check it. Suppose I am taking 1 by 2, 2, a rational number. 2 एक rational number है. कैसे? 2 by 1 we can write it as. Clear? So 2 is a rational number, and we are multiplying the multiplicative inverse of 2. So what is the multiplicative inverse of 2? Just 1 by 2. Here multiplicative inverse of a is what? 1 by a. So multiplicative inverse of 2 is 1 by 2, and if we will add multiply these two numbers, then we will get 1. Is it true? Do cut it. 2 and 2 cut it, then it is 1. Yeah, it's true. So that means if we multiply a rational number and its multiplicative inverse, then we will get 1. Always we will get 1. It is true, universal true. Okay, so now 1 by a, how we are finding the multiplicative inverse of a number? That means multiplicative inverse is nothing but only reciprocal. Multiplicative inverse is nothing but only reciprocal. That means multiplicative inverse of a, multiplicative inverse, suppose 3, multiplicative inverse of 3 will be what? 1 by 3. Multiplicative inverse of 1 by 3 will be what? 3. Multiplicative inverse of 2 by 3 will be what? 3 by 2. Just reciprocal you have to take. This is called the multiplicative inverse. Clear? And here 1, this 1 is called what? 0 is called what? Additive identity, and 1 is called what? Here we are talking about the multiplication, so 1 will be the multiplicative identity. Wherever 0 कहाँ पे यूज होता था? एडिशन के टाइम पे आता था. तो 0 हो गया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी. तो 1 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्लियर? 1 इज multiplicative identity.
1 is, this 1 will be multiplicative identity, and these are the properties of rational number for multiplication. अब देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सब प्रॉपर्टी है कि नहीं। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए सारा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए सारा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सारा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, एक्चुअली दिस प्रॉपर्टीज आर ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ये सारा प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? तो रैशनल नंबर का जितना सारा प्रॉपर्टीज है सब एडिशन के लिए है, यही चारों प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए है यही चारों प्रॉपर्टी। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को यूज करके होता है। देखो, ये सारा प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सारा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए शायद कुछ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा, लेकिन ज्यादातर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए बुक्स में देखोगे बस डायरेक्टली ये दिया रहता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है, बस एडिशन और डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्यों सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन नहीं होगा एप्लीकेबल और डिवीजन के लिए क्यों नहीं होगा। सपोज ये प्रॉपर्टी मैंने ले लिया, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी। अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए ले रहा हूं, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी, बी माइनस ए होना चाहिए। तो a मैं ले रहा हूं 1, a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू हाफ। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 माइनस हाफ, कितना आएगा? हाफ आएगा। और b माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा? हाफ माइनस 1, दैट मीन्स माइनस हाफ। देखो दोनों डिफरेंट है, तो a माइनस बी और b माइनस ए सेम है? नो, दीज आर नॉट इक्वल। तो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होगा, तभी जाकर उसको कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए तो ये प्रॉपर्टी नहीं आया। तो ऐसे ही तुम अगर चेक करोगे तो मोस्टली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टली बुक में ये दिया रहता है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ये सब एप्लीकेबल है। तो अब देखेंगे एक लास्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी ना ही एडिशन के लिए है, ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना ही सब्ट्रैक्शन, ना ही डिवीजन, ये सबको मिला के है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्हाट इज, पहले मैंने ये लिखने दो कि एक्चुअल प्रॉपर्टी ये है क्या। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a into b minus c is equals to a into b minus b a into c, here not plus, here it will be multiply। देखो कैसे किया मैंने, a into b plus c is equals to what? a into b, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? a into b first, then this plus sign here plus, then a into c, and here same thing, a into b first, then this minus sign here, then a into c, these are two distributive properties and these are also applicable for the rational numbers। ये दोनों properties भी rational number के लिए applicable होता है। तो यही था properties of rational number for multiplication and addition, and for subtraction and
डिवीजन देयर इज नो एनी प्रॉपर्टी। सिर्फ रैशनल नंबर के लिए ही नहीं, इंटीजर के लिए भी, होल नंबर के लिए भी सारा प्रॉपर्टीज है, बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। सो hope you will be helpful from this video, and in the next class we will talk about further things about the rational number, and thank you for watching my video.